नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। कोरोना वायरस को लेकर डीएम ने की अहम बैठक। सिलीगुड़ी व उसके आसपास कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को सिलीगुड़ी गेस्ट हाउस में प्रशासन की ओर से कोरोना से निपटने के लिए गठित टास्क फोर्स की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बता दें कि कुछ दिनों पहले कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकारी निर्देश अनुसार जन प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर जिला स्तरीय एक टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया था। इस टीम में प्रशासनिक अधिकारियों में जिला शासक, महकुमा शासक, पुलिस अधिकारी के साथ ही जन प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। आज टास्क फोर्स की एक अहम बैठक के बाद जिला शासक ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी। इस गाइडलाइंस के अनुसार ही अब लोगों को व्यवसाय करना होगा। उन्होंने कहा कि इसी के साथ विभिन्न ग्राम पंचायत ब्लॉकों में एक टीम का गठन किया जाएगा। वह टीम कंटेनमेंट इलाकों की देखरेख करेगी और वहां के लोगों के लिए जरूरी सामग्रियां पहुंचाएगी। दूसरी ओर सिलीगुड़ी के विभिन्न बाजारों में निगरानी के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया है। नगर निगम के कमिश्नर सोनम वांगदी भूटिया को कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। Review our management and containment strategy of COVID. আমরা এটা প্রথম মিটিং আপনারা জানেন আগামী লাস্ট উইক উই হ্যাভ ডান দ্যাট। সো এখন সেকেন্ড মিটিং করেছি, ওটা কিভাবে আমরা এটাকে রিভিউ করব আর আমরা কি কি আরও মেজার্স নেওয়ার উচিত, এটাকে এখন যেহেতু এখন রিসেন্ট 2-3 ধরে একটু আমরা বেশি সংখ্যায় কেসগুলো হচ্ছে, আমরা কি কি করতে হবে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। Sir, you have ordered to shut down a fish market from today for 7 days. Yes. So why? বিকজ লাস্ট 2 দিন ধরে যেটা কেস হয়েছিল, Sir, English, sir. আপনার মেজরিটি ঠিক আছে, মেজরিটিতে বাংলাতে ইয়ে আছে, ওই জন্য বাংলাতে বলছি, ঠিক আছে। সো লাস্ট 2 ডেজে अराउंड 2-3 কেসেস আর লিঙ্কড উইথ দ্য ফিশ মার্কেট অনলি ডাইরেক্টলি। একটা বিজনেসম্যান আছে ওখানে, স্টল ওনার, একজন স্টল ওনার আছে আর একটা দুজন লেবার আছে। ওই জন্য আমরা ভাবছিলাম ইটস সেফ টু শাট ডাউন ফর 7 ডেজ অ্যান্ড ওই এরিয়াকে স্যানিটাইজ করবো কমপ্লিটলি। তারপরে আমরা ওটা আস্তে আস্তে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এই পদ্ধতি মেনে আমরা ওপেন করবো। Is it for 7 days or it will be extended? প্রথমে আমরা 7 ডেজ করছি, তারপরে স্যানিটাইজেশন করব, আর তারপরে আমরা ওটা সব বেশি দিন বন্ধ রাখলে লোকদেরও অসুবিধা হবে। তারপরে আমরা যেটা করব, এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে কিভাবে আমরা ওদের ব্যবসায় করতে পারে ওদের সঙ্গে মিটিং করে তারপরে নর্থ বেঙ্গল Yes, ইয়েস। আর আজকের মিটিং এ মেইনলি কি কি ডিসিশন না হচ্ছে, নতুন করে কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? নতুন পুরোনোই আমাদের ম্যাক্সিমাম সিদ্ধান্তগুলোকে রিভিউ করা হয়েছে। কন্টেইনমেন্ট কিভাবে করতে হবে, ওখানে কি কি আরও আমরা কাড়াভাবে কন্টেইনমেন্টকে আমরা করতে পারি, অ্যান্ড ওখানে আমরা এসেনশিয়াল কমোডিটিস জল থেকে শুরু করে, জল খাওয়ার থেকে শুরু করে কিভাবে ওদেরকে পৌঁছে দিতে পারি, এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর একটা নতুন হয়েছে, আমরা জিপি লেভেলে আমরা একটা টিম করতে বলবো, ব্লক লেভেল টাস্ক ফোর্সকে। জিপি লেভেলে একটা টিম থাকবে, দে উইল ওভারসি দ্য কন্টেইনমেন্ট মেজার্স। ওখানে কীভাবে কন্টেইনমেন্ট স্ট্রিক্টলি হচ্ছে ওটা মনিটরিং করবে, আর এসেনশিয়াল কমোডিটিস কীভাবে ওদেরকে পৌঁছানো যাবে এটা নিয়ে জিপি টিম ওই মনিটরিং করবে গ্রামের দিকে। ইচ জিপি 22 জিপিস আছে, তো এক একটা জিপিতে এক একটা কমিটি করতে হবে। এটা ব্লক লেভেল টিম টাস্ক ফোর্সের দায়িত্ব, ওদেরকে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেবো। ওটা ব্লক লেভেল টাস্ক ফোর্স ডিসাইড করবে। ওটা कोरोना वायरस का संक्रमण देश में अपने वृहद स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में देश के तमाम राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर बंगाल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भी संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में आज दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के सांसद राजू बिष्ट अपने संसदीय क्षेत्र दार्जिलिंग 14 दिनों के भ्रमण के लिए पहुंचे हैं। आज उन्होंने दार्जिलिंग में स्थित बताशे टीबी अस्पताल एवं दार्जिलिंग सरकारी अस्पताल का परिभ्रमण कर वहां की वास्तविक हालतों का जायजा लिया। भ्रमण पश्चात उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दार्जिलिंग में टेस्टिंग लैब होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि टेस्टिंग लैब की प्रक्रिया वे अपनी संसद कोष या अपनी व्यक्तिगत लागत से पूरा करने का आश्वासन भी दिया। आज बतासे क्वारंटाइन सेंटर में मेरो विजिट बा। सबभन्दा पहिले तो संपूर्ण जनतालाई मेरो नमस्कार।
गोर्खा सलाम। र यहाँको प्रशासन जिटिए लगायत जति पनि हामीहरूका हेल्थ वरियरहरू छन्, मिडियाका साथी कर्मीहरू, अरू एनजिओ क्लबका साथीहरू, धेरै राजनीतिक पार्टीका दलहरू लगायत हामीहरूका एलायन्स पार्टीका दलहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। आफ्नो क्षमताका हिसाब, क्षमताभन्दा अलिक धेरै भनौँ न, सबैले काम गरेर आज हामीले कोरोना भाइरसलाई लड्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। र यसै क्रममा आज म दार्जिलिङ आउन पाएँ र दार्जिलिङमा आउँदाखेरि फर्स्ट मैले बतासे हामीहरूको क्वारेन्टाइन सेन्टर भिजिट गरेँ। त्यसको पश्चात अहिले म दार्जिलिङ अस्पतालमा छु। सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग राम्रो कुरा भयो र यहाँ अहिले 380 को बेडवाला अस्पताल, एक्चुअलमा अहिले यहाँ पेसेन्ट 90वटा छन्, तर कोरोना पेसेन्ट यहाँ कुनै पनि छैनन्। कुनै पनि अगर एउटा सिम्पटम डेभलप भएको कुनै पेसेन्ट आउँछ भने यहाँदेखि उनीहरूले उहाँहरूले स्याम्पल कलेक्ट गरेर सिलिगुडीमा पठाउने गर्नेछन् र अगर त्यो स्याम्पलको हिसाब मुताबिक अगर कुनै मरिज पोजिटिभ पाउँदाखेरि लगत्तै उहाँहरूले कोभिड हस्पिटलमा सिलिगुडी ट्रान्सफर गर्ने उहाँहरूको क्रम रहेछ। त्यो मैले जान्न म पाएँ। र सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग जुन कुरा भयो त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टेस्टिङ लेबको थियो। अब यो टेस्टिङ लेबको खाँचो मैले पहाडमा अघि नैदेखि देखिरहेको छु, किनभने हामीहरूको सिलिगुडीदेखि डिस्टेन्स धेरै टाढो छ। र आज त्यहाँ सुप्रिन्टेन्डेन्टका साथमा बस्दा बस्दै मैले हर्षवर्धनजीको फोन मिलाउँदा उहाँ त मिटिङमा हुनुहुँदो रहेछ र उहाँको सेक्रेटरीसँग पनि मेरो कुरा भयो अहिले भर्खरै। र आउँदो दिनमा अब टेस्टिङले हामीहरूको दार्जिलिङ अस्पतालमा पनि हुन्छ, त्यसका लागि मार्ग कसरी प्रशस्त गर्ने त्यसको कुराकानी पनि भयो। राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित मरीजों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए प्रत्येक कोविड अस्पताल के वार्ड में टीवी लगाने और साइकोलॉजिस्ट देने की व्यवस्था की है, ताकि कोरोना संक्रमित रोगियों को मानसिक रूप में स्वस्थ रखा जा सके। इस संबंध में आज राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उत्तर दिनाजपुर के स्वास्थ्य एवं अन्य अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की। इस मीटिंग में रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस मीटिंग के दौरान कोविड-19 स्पेशल ऑन ड्यूटी डॉक्टर सुशांत रॉय, उत्तर दिनाजपुर जिला शासक अरविंद कुमार, अतिरिक्त जिला शासक रीना योशी, जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रविंद्र नाथ प्रधान सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग के बाद ओएसडी डॉक्टर सुशांत रॉय ने बताया कि उत्तर बंगाल में कुल 995 लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन इनमें से 50% रोगी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 507 एक्टिव केसेस है। अभी तक 58,180 लोगों की जांच हो चुकी है। उत्तर बंगाल में 4 लोगों की मौतें हुई है। उन्होंने बताया कि 763 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 2,83,133 लोगों के रखने की व्यवस्था है। स्पेशल ऑन ड्यूटी डॉक्टर सुशांत रॉय ने बताया कि उत्तर बंगाल में मास्क और पीपीई किट्स की कोई कमी नहीं है। जलपाईगुड़ी में भी 200 बेड्स का अस्पताल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। দেখুন, এর আগে আমরা 27 তারিখে এখানে এসেছিলাম, 27/4/2020-তে। সেই সময় তো আমার প্রিপেয়ারনেসের উপরে অনেক কিছু জেনে গিয়েছিলাম। সেটা একটা রিভিউ মিটিং হয় সবসময়, আপনারা জানেন যে কোনো একটা কীরকম এগোলো না এগোলো সেটা আমরা মিটিংয়ে আলোচনা করবো। আমি আপনাদের কয়েকটা ইনফরমেশন শুরু দিই, উত্তরবঙ্গের পিকচারটা আপনারা জেনে নিন, সেটা সুবিধা হবে। সেটা হচ্ছে যে উত্তরবঙ্গে যদিও মাইগ্রেটরি পপুলেশনের জন্য একটা সমস্যা আছে, আমরা জানতাম সেটা হবে, তা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের পিকচার যথেষ্ট ভালো। এই এখনও পর্যন্ত যেমন 995 জন, এটা 10 তারিখের কথা বলছি, 995 জন অ্যাফেক্টেড হয়েছিলেন, করোনা পজিটিভ হয়েছিলেন। তার মধ্যে আমরা 50%কে ছেড়ে দিতে পেরেছিলাম সুস্থ করিয়ে। আমাদের এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ কেস 10 তারিখ কথা বলছি 507 জন ছিলেন, টোটাল ডেথ 4 জন হয়েছিলেন। আমি একটু বলে রাখি যে এর মধ্যে আমরা স্যাম্পল স্টাডিগুলো খুব ভালোভাবে করি, তাতে 58,180 আমরা স্যাম্পল স্টাডি করতে পেরেছি। আমাদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার, যেটাকে নিয়ে আমাদের খুব চিন্তা, মাইগ্রেটেড লোকজন যারা আসবেন তারা কোথায় থাকবেন সেটাও বলছি। আমাদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের সংখ্যা 763, এটা ডাইনামিক, কম বেশি হয় সবসময়তেই। আর আমাদের কোয়ারেন্টাইনের বেডস 66,000-এর উপরে আছে, এটাও প্লাস মাইনাস হয়, মূলত প্লাস হয় অ্যাজ পার দ্য নিড। হোম কোয়ারেন্টাইনে আমাদের 2,83,133 জন কিউমুলেটিভ এফেক্ট বলছি এগুলো। আমাদের পিপিই কিট বা N95 মাস্ক, যেটাতে আমরা ভীষণ নজর দিয়েছিলাম, আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী বা যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার আছে তাদেরকে
সুরক্ষার জন্য, সেই জায়গাটা আমাদের খুব সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে আছে। কয়েকটা নতুন কথা বলে রাখি, আমরা এখন বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ, নন সিমটমেটিক বা অ্যাসিমটমেটিক কেস সবচেয়ে বেশি, তাদেরকে আমাদের রাখতে হচ্ছে। তারা সাধারণত কী হচ্ছে, ওয়ার্ডে গিয়ে হয় লুডো খেলছে, ক্যারাম খেলছে, না মারামারি করছে। তো সেই জন্য আমরা এখন প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একটা করে ছোটো টেলিভিশন দিতে চাইছি। টেলিভিশনের ব্যবস্থা আমি আজকে মিটিংয়ে বলবো। প্রত্যেকটি জায়গাতে অলরেডি শুরু করে দিয়েছি আমরা কাজটা, তাদের একটু মানসিক চাপ কমানোর জন্য। আর সাইকিয়াট্রি ডাক্তারবাবুদের বা কাউন্সিলিং করার জন্য আমরা সাইকোলজিস্ট বা সাইকোঅ্যানালিস্টদের পাঠাতে বলছি। এটা একটা ভালো খবর। আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী বা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কাররা যদি কখনও এফেক্টেড হন, তাহলে কোথায় যাবেন তারা? তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। আমরা প্রতিটি জায়গাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু এই মুহূর্তে জলপাইগুড়িতে আমরা প্রায় 200 বেডের ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার যারা আছেন, সে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে চিফ মেডিকেল অফিসার বা যে কেউ, তারা যদি অসুস্থ হন তো যে কোনো জায়গায় তো রাখা যাবে না। আমরা তার জন্য একটা আইসোলেটেড জায়গা করছি। যদি কোনো ডিস্ট্রিক্ট সেখানে পাঠাতে চান, আমরা এক্সপেক্টেড 7 দিনের মধ্যে ওই 200 বেড তো রেডি করা একদিনের সম্ভব না। গতকাল 75টা বেড এসছে, আজকে চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় 5-7 দিনের মধ্যে আমরা সেটাকেও কমপ্লিট করতে পারবো। সুতরাং হেন্সফোর যদি কোনো স্বাস্থ্যকর্মী বলুন, পুলিশ অফিসিয়াল বলুন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে, বা আপনারা যদি কখনও কোনো অসুবিধায় পড়েন, যদি নর্মাল ওয়ার্ডে না থাকতে চান, তাহলে আমাদের কিন্তু জলপাইগুড়িতে আমরা এটার ব্যবস্থা করেছি। এটা আমি যাবো এই মিটিংয়ের পরে, আমি বলেছিলাম মিটিংয়ের পরে আমরা যাবো ওখানে একটু দেখতে। ইট ইজ এক্সপেক্টেড বাই 15th, হ্যাঁ, 15 তারিখ থেকে এটা শুরু হচ্ছে। আমরা একটু দেখে নেবো, একটা জিনিস প্রসিডিওর আছে, সেই প্রসিডিওরগুলো মেনটেন করে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। নিয়ারলি মিনিমাম 400, কারণ এখন সব পজিটিভ কেস হচ্ছে, সুতরাং 400 থেকে 450 বেশি কিন্তু করা যাবে না। যখন নেগেটিভ চলছিল তখন সেটা আমাদের প্রায় 800 থেকে 900 মতন বা 1100 মতন হয়ে যাচ্ছে, পুল টেস্ট করা হতো। কিন্তু এখন পুলে এত পজিটিভ কেস আসছে, 400 থেকে 450 বেশি করা যাবে না। এটা যদি বাড়ে, আমরা আরেকটা সুখবর দিই আপনাদের, সেটা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে এই RT-PCR করছি। ইভেন জলপাইগুড়িতে আজকে একটা স্যাংশন হবে। আমার জলপাইগুড়িতে 2-1 দিনের মধ্যে ওটাকে কিন্তু নিয়ে এসে 1 সপ্তাহ দিন 10-এর মধ্যে RT-PCR। এছাড়া প্রত্যেকটি উত্তরবঙ্গের ইনস্ট্রুমেন্টের নাম, মানে যেটা VRDL ল্যাব যেটাকে বলে। এছাড়া আমাদের প্রত্যেকটি জেলাকে কিন্তু আমরা ট্রুন্যাট মেশিন দিয়েছি আপৎকালীন ইয়েতে টেস্ট করার জন্য। सिक्किम राज्य की विपक्षी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी SDF पार्टी के प्रवक्ता JB दरनाल पर दिन दहाड़े प्राण घातक हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना आज राजधानी गैंगटोक के देवराली में घटी है और इस घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अज्ञात हमलावरों ने प्रवक्ता दरनाल पर धारदार हथियार से पीछे से हमला कर उनको जान से मारने की कोशिश की एवं उनके सिर में काफी चोटें आई है। इस घटना को SDF पार्टी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर दिनाजपुर भाजपा जिला कमेटी ने 3 महीने का विद्युत बिल माफ करने की मांग को लेकर किया पथावरोध और धरना प्रदर्शन। सामाजिक दूरी के पालन को लेकर उठे सवाल। कोरोना वायरस के कारण पिछले 3 महीने से लोगों का रोजगार बंद है और इस दौरान लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर दिनाजपुर भाजपा जिला कमेटी की ओर से 3 महीने के विद्युत बिल माफ करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही शहर के राजपथ सड़क पर अवरोध भी किया, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान सामाजिक दूरी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक दूरी की जमकर धज्जियां उड़ाई। इस बीच वहां उत्तर दिनाजपुर जिले के भाजपा अध्यक्ष विश्वजीत लेहड़ी समेत अन्य नेता भी उपस्थित रहे थे। सामाजिक दूरी के विषय में पूछे जाने पर विश्वजीत लेहड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही हाट, बाजार, मॉल आदि खोलकर सामाजिक दूरी का उल्लंघन कर दिया है। देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में वे लोग बिजली के बिल कहां से देंगे। गरीबों के लिए समय काफी मुश्किल भरा हुआ है और राज्य सरकार को चाहिए कि वहां लोगों का विद्युत बिल माफ करे। उन्होंने कहा कि हम लोग सामाजिक दूरी को मानकर और मास्क पहनकर ही आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठाती है तो हम लोग और जोरदार आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी एक असामाजिक पार्टी है और यही कारण है कि नियम कानून का उल्लंघन उनके द्वारा किया जा रहा है। जब बड़े नेता ही सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ता कैसे करेंगे? দেখুন, এর আগে আমরা 27 তারিখে এখানে এসেছিলাম, 27/4/2020-তে। সেই সময় তো আমার প্রিপেয়ারনেসের উপরে অনেক কিছু জেনে গিয়েছিলাম।
সেটা একটা রিভিউ মিটিং হয় সবসময়, তো আপনারা জানেন যে কোনো একটা কীরকম এগোলো না এগোলো সেটা আমরা মিটিংয়ে আলোচনা করবো। আমি আপনাদের কয়েকটা ইনফরমেশন শুরু দিই, উত্তরবঙ্গের পিকচারটা আপনারা জেনে নিন, সেটা সুবিধা হবে। সেটা হচ্ছে যে উত্তরবঙ্গে যদিও মাইগ্রেটরি পপুলেশনের জন্য একটা সমস্যা আছে, আমরা জানতাম সেটা হবে, তা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের পিকচার যথেষ্ট ভালো। এই এখনও পর্যন্ত যেমন 995 জন, এটা 10 তারিখের কথা বলছি, 995 জন অ্যাফেক্টেড হয়েছিলেন, করোনা পজিটিভ হয়েছিলেন। তার মধ্যে আমরা 50%কে ছেড়ে দিতে পেরেছিলাম সুস্থ করিয়ে। আমাদের এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ কেস 10 তারিখের কথা বলছি 507 জন ছিলেন, টোটাল ডেথ 4 জন হয়েছিলেন। আমি একটু বলে রাখি যে এর মধ্যে আমরা স্যাম্পল স্টাডিগুলো খুব ভালোভাবে করি, তাতে 58,180 আমরা স্যাম্পল স্টাডি করতে পেরেছি। আমাদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার, যেটাকে নিয়ে আমাদের খুব চিন্তা, মাইগ্রেটেড লোকজন যারা আসবেন তারা কোথায় থাকবেন সেটাও বলছি। আমাদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের সংখ্যা 763, এটা ডাইনামিক, কম বেশি হয় সবসময়তেই। আর আমাদের কোয়ারেন্টাইনের বেডস 66,000-এর উপরে আছে, এটাও প্লাস মাইনাস হয়, মূলত প্লাস হয় অ্যাজ পার দ্য নিড। হোম কোয়ারেন্টাইনে আমাদের 2,83,133 জন কিউমুলেটিভ এফেক্ট বলছি এগুলো। আমাদের পিপিই কিট বা N95 মাস্ক, যেটাতে আমরা ভীষণ নজর দিয়েছিলাম আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী বা যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার আছে তাদেরকে সুরক্ষার জন্য, সেই জায়গাটা আমাদের খুব সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে আছে। কয়েকটা নতুন কথা বলে রাখি, আমরা এখন বুঝতে পারছি যে নন সিমটমেটিক বা অ্যাসিমটমেটিক কেস সবচেয়ে বেশি, তাদেরকে আমাদের রাখতে হচ্ছে। তারা সাধারণত কী হচ্ছে, ওয়ার্ডে গিয়ে হয় লুডো খেলছে, ক্যারাম খেলছে, না মারামারি করছে। তো সেই জন্য আমরা এখন প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একটা করে ছোটো টেলিভিশন দিতে চাইছি। টেলিভিশনের ব্যবস্থা আমি আজকে মিটিংয়ে বলবো, প্রত্যেকটি জায়গাতে অলরেডি শুরু করে দিয়েছি আমরা কাজটা, তাদের একটু মানসিক চাপ কমানোর জন্য। আর সাইকিয়াট্রি ডাক্তারবাবুদের বা কাউন্সিলিং করার জন্য আমরা সাইকোলজিস্ট বা সাইকোঅ্যানালিস্টদের পাঠাতে বলছি। এটা একটা ভালো খবর। আর একটা জিনিস বলে রাখি যে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী বা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কাররা যদি কখনও এফেক্টেড হন তাহলে কোথায় যাবেন তারা, তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। আমরা প্রতিটি জায়গাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু এই মুহূর্তে জলপাইগুড়িতে আমরা প্রায় 200 বেডের ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার যারা আছেন, সে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে চিফ মেডিকেল অফিসার বা যে কেউ, তারা যদি অসুস্থ হন তো যে কোনো জায়গায় তো রাখা যাবে না। আমরা তার জন্য একটা আইসোলেটেড জায়গা করছি, যদি কোনো ডিস্ট্রিক্ট সেখানে পাঠাতে চান। আমরা এক্সপেক্টেড 7 দিনের মধ্যে ওই 200 বেড তো রেডি করা একদিনের সম্ভব না। গতকাল 75টা বেড এসছে, আজকে চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় 5-7 দিনের মধ্যে আমরা সেটাকেও কমপ্লিট করতে পারবো। সুতরাং হেন্সফোর্থ যদি কোনো স্বাস্থ্যকর্মী বলুন, পুলিশ অফিসিয়াল বলুন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে, বা আপনারা যদি কখনও কোনো অসুবিধায় পড়েন, যদি নর্মাল ওয়ার্ডে না থাকতে চান, তাহলে আমাদের কিন্তু জলপাইগুড়িতে আমরা এটার ব্যবস্থা করেছি। এটা আমি যাবো এই মিটিংয়ের পরে, আমি বলেছিলাম মিটিংয়ের পরে আমরা যাবো ওখানে একটু দেখতে। ইট ইজ এক্সপেক্টেড বাই 15th, হ্যাঁ 15 তারিখ থেকে এটা শুরু হচ্ছে। আমরা একটু দেখে নেবো, একটা জিনিস প্রসিডিওর আছে, সেই প্রসিডিওরগুলো মেনটেন করে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। নিয়ারলি মিনিমাম 400, কারণ এখন সব পজিটিভ কেস হচ্ছে, সুতরাং 400 থেকে 450 বেশি কিন্তু করা যাবে না। যখন নেগেটিভ চলছিল তখন সেটা আমাদের প্রায় 800 থেকে 900 মতন বা 1000-1100 মতন হয়ে যাচ্ছে, ফুল টেস্ট করা হতো। কিন্তু এখন পুলে এত পজিটিভ কেস আসছে, 400 থেকে 450 বেশি করা যাবে না। এটা যদি বাড়ে, আমরা আরেকটা সুখবর দিই আপনাদের, সেটা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে এই RT-PCR করছি। ইভেন জলপাইগুড়িতে আজকে একটা স্যাংশন হবে, আমার জলপাইগুড়িতে 2-1 দিনের মধ্যে ওটাকে কিন্তু নিয়ে এসে 1 সপ্তাহ দিন 10-এর মধ্যে RT-PCR। এছাড়া প্রত্যেকটি উত্তরবঙ্গের ইনস্ট্রুমেন্টের নাম, মানে যারা VRDL ল্যাব যেটাকে বলে, এছাড়া আমাদের প্রত্যেকটি জেলাকে কিন্তু আমরা ট্রুন্যাট মেশিন দিয়েছি আপৎকালীন ইয়েতে টেস্ট করার জন্য। कोविड-19 महामारी के समय में संपूर्ण लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके बावजूद प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर थाना SHO विजेंद्र थापा एवं अतिरिक्त जिलापाल पूर्व जामयांग सी नामग्याल के नेतृत्व में पुलिस के एक विशेष दल ने पूर्व जिले के रेलिंगदोम सड़क में छापेमारी कर 1041 बोतल कफ सिरप, 2000 से अधिक SP के टैबलेट्स और 100 से अधिक एंटेन के टैबलेट्स जब्त की है। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। कोरोना से मुक्ति के लिए महिलाएं कर रही है कोरोना पूजा।
कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया भर के चिकित्सक कोरोना के वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की महिलाएं कोरोना से देश को मुक्ति दिलाने की कामना के साथ कोरोना पूजा का आयोजन कर रही है। अलीपुरद्वार के 17 नंबर वार्ड की महिलाओं को शुक्रवार को कोरोना पूजा करते देखा गया। आज सुबह से पूरे नियम व श्रद्धा से पूजा का आयोजन किया गया। ये महिलाएं कोरोना पूजा कर कोरोना मां से विश्व को इस महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रही थी। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोच बिहार में गांजे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कोच बिहार कोतवाली थाने की पुलिस ने आज महाकलपाला बाजार इलाके में छापा मारकर 115 किलो गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों भाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक का नाम चंडी मंडल और दूसरे का नाम कर्ण मंडल है। दोनों गांजे की तस्करी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले पुलिस ने अभियान चलाकर दोनों को धर दबोचा। दोनों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जलपाईगुड़ी डीएम कार्यालय में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिल रही है एंट्री। शरीर का तापमान अधिक पाए जाने पर भेजा जा रहा है अस्पताल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जलपाईगुड़ी जिला शासक कार्यालय में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। जिला शासक कार्यालय के प्रधान दरवाजे के सामने थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। यहां आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। बताया जाता है कि जिन लोगों के शरीर का तापमान 100 डिग्री पाया जाता है, उन्हें जलपाईगुड़ी जिला शासक कार्यालय में घुसने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क कर अस्पताल भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन सूत्रों के अनुसार जलपाईगुड़ी जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है। ঘটনা হচ্ছে প্রথমত করোনার জন্য আমাদের নবান্ন থেকে নির্দেশ এবং আমাদের জেলা শাসকের নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি কর্মচারী এবং বহিরাগত সমস্ত যে পাবলিক আমাদের ডিএম অফিসে কাজে আসছেন তাদের থার্মাল চেকিং হচ্ছে এবং 100-র উপরে জ্বর থাকলে আমরা তাদের জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেইভাবে চেক করে আমরা আমাদের যাতে সুরক্ষিত থাকতে পারি কর্মচারীরা এবং ভালো মতো আমরা যাতে অফিস করতে পারি, সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। मालदा में फंसे हैं बारासात के 16 बंजारन परिवार। खाद्य संकट से जूझ रहे हैं सभी लोग। करीब 2 महीने से लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। अनलॉक शुरू होते ही धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी है। रेलगाड़ी व हवाई जहाज का परिचालन शुरू हो गया है। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी शुरू हो गई है। हालांकि मालदा जिले में रह रहे बंजारे का एक दल कोलकाता के बारासात अपने घर नहीं लौट पा रहा है। जहां तहां जिंदगी जीने वाले बंजारों का यह दल कोरोना के डर से अपने घर लौटना नहीं चाहते। इन्हें डर है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कहीं वे इसकी चपेट में ना आ जाए। इसी वजह से वे लोग फिलहाल अपने घर लौटना नहीं चाहते। फिलहाल 16 बंजारन परिवार के 60 सदस्य मालदा के रायपुर इलाके में खुले आसमान के नीचे दिन बिताने को मजबूर है। इनमें पुरुष, महिला व बच्चे व বৃদ্ধ শামিল है। আমরা ধরেন যে বাড়ি যাওয়ার জন্য এখানে ব্যবসা করতে এসেছিলাম, বাড়িতে যাব লকডাউন হয়ে গেল, আর কোথাও যাওয়া হচ্ছে না, বাড়িতে মেনে নিচ্ছে না। এলাকার লোক কিছু সাহায্য করলো, এই দিয়ে আর কয়দিন চলবো? আমরা 4 মাস ধরে আটকা আছি এখানে। যে কাজটা জীবনে আমরা করি নাই, আম ভাঙতে যাচ্ছি, কষ্ট করে যাচ্ছে শরীরে, গাছ চলে যাচ্ছে, গাছ উঠতে পারছি না। ধরেন লেবার কাজ করতে যাচ্ছি, ইট পড়ে যাচ্ছে পায়ে, কারো ধান ভাঙতে হচ্ছে, ধান কাটতে হচ্ছে, চাকরের মতো পেটে জ্বালায় করতে হচ্ছে, আর পারছি না। আমাদের খুব কষ্ট। এলাকার লোক সাহায্য করছে।
विद्युत बिल माफ करने की मांग को लेकर भाजपा ने सौंपा ज्ञापन, मांगे नहीं मानने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी। विद्युत बिल माफ करने की मांग को लेकर भाजपा की ओर से आंदोलन तेज कर दिया गया है। पूरे राज्य के साथ साथ शुक्रवार को भाजपा समर्थकों ने बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपुकुर ब्लॉक के पांजीपड़ा स्थित बिजली कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की 7 नंबर मंडल कमेटी के अध्यक्ष आनंद मंडल ने बताया कि लॉकडाउन के कारण फिलहाल आम लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। वे लोग खाद्य संकट समेत विभिन्न दिक्कतों से दिन बिताने को मजबूर है। ऐसे में उनके लिए बिजली बिल देना काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए वे लोग राज्य सरकार से बिजली बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा बिजली बिल माफ नहीं किए जाने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भाजपा सूत्रों के अनुसार बिजली बिल माफ किए जाने की मांग को लेकर पार्टी की ओर से पूरे राज्य में आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे क्रम में आज जिले के पांजीपाड़ा शिव मंदिर के पास से बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए बिजली कार्यालय पहुंची। यहां बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। সারা রাজ্যের সাথে উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিদ্যুৎ বিল এই লকডাউনের 3 মাসের বিদ্যুৎ বিল মুকুবের দাবিতে ভারতীয় জনতা পার্টি গোয়ালপুকুর 3 মণ্ডল বিধানসভা নিয়ে আমরা আজ বিদ্যুৎ অফিসে সরব হয়েছি। আমরা এখান থেকে বার্তা দিতে চাই, আপনাদের মাধ্যমে এটা আমরা বার্তা দিতে চাই দিদিকে, এই 3 মাসের এই লকডাউনের 3 মাসের বিদ্যুৎ বিল যদি মুকুব করা না হয় এই উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে বন্ধ করে দেব। আমরা সরাসরি উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিদ্যুতের বিল মকুব না করলে সাধারণ মানুষজন বন্ধ করে দেবে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই লকডাউনের 3 মাসের বিল মুকুবের জন্য আজকে আমরা সরব হয়েছে গোয়ালপুকুর পাঞ্জিপাড়া ইলেকট্রিক বিল অফিসে। আপনারা দেখছেন कोरोना वायरस का संक्रमण देश में अपने वृहद स्तर पर पहुंच चुका है एवं देश के सारे राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि देश में कोरोना संक्रमित एवं वायरस के साथ जंग जीतकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी 1 लाख को पार कर गई है। इस बीच एक बार फिर से पहाड़ी राज्य सिक्किम में 14 नए कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई है। उक्त पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि 14 मरीजों में से 11 महिला मरीज शामिल है और 3 पुरुष शामिल है। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री रही है या यूं कहे उनकी यात्रा इतिहास सभी की रही है। कुछ दिनों पहले वे अपने गृह राज्य पहुंचे थे एवं उन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। 12 लोग मुंबई से और 2 लोग पश्चिम बंगाल से अपने गृह राज्य पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में 2 वर्ष 3 महीने का बच्चा भी शामिल है। जानकारी के अनुसार 9 संक्रमित मरीज बाहा स्कूल रानीपुल में क्वारंटाइन सेंटर में थे, 3 संक्रमित मरीज एपी के गार्डन क्वारंटाइन सेंटर में थे और 2 मरीज पीएनजी स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की तत्परता में सभी 14 मरीजों को गैंगटोक के एसटीएनएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि तीनों फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटरों को सरकार के द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दी गई है। रायगंज शहर में एक विद्यालय की छात्र, एक युवक और टोटो चालक में कोरोना वायरस संक्रमण मिले हैं, जिससे फिर से जिले में आतंक फैल गया है। विशेषकर टोटो चालक में कोरोना के वायरस मिलने से लोग ज्यादा आतंकित हो उठे हैं, क्योंकि टोटो चालक से कई लोगों में संक्रमण फैला होगा। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद से जिले में अब तक कुल 221 संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 186 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। सिलीगुड़ी का रेगुलेटेड मार्केट मछली बाजार आज से बंद। आगामी 7 दिनों तक के लिए बंद रखने का निर्णय दार्जिलिंग जिला शासक एस पुनब्बलम ने दी है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस की संख्या सिलीगुड़ी में काफी बढ़ती जा रही थी। वहीं चंपासड़ी संलग्न रेगुलेटेड मार्केट काफी बड़ा बाजार है। यहाँ पर सब्जी, फल व मछली के गद्दी है, जिसके कारण यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमती है। वर्तमान समय में 2-3 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज का संपर्क रेगुलेटेड मार्केट से भी रहा है, जिसके बाद दार्जिलिंग के जिला शासक एस पुनब्बलम ने
गुरुवार रात को ही एक नई निर्देशिका जारी की, जिसके तहत शुक्रवार सुबह से आगामी 7 दिनों तक के लिए रेगुलेटेड मार्केट के मछली बाजार को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं से मार्केट बंद रखने के लिए काफी संख्या में प्रधाननगर थाने की पुलिस मौजूद है। जहां कभी 4 बजे सुबह ही रेगुलेटेड मार्केट खुल जाया करता था, वहीं शुक्रवार सुबह से प्रधाननगर थाने की पुलिस पूरे मार्केट परिसर पर नजरदारी करने के लिए जगह जगह पर तैनात कर दी गई है। वहीं आज रेगुलेटेड मार्केट के मछली बाजार में पूरा सन्नाटा सुबह से ही पसरा हुआ देखा गया। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।